Right, so good evening everyone. Welcome to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of a career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav and I have been your teacher and mentor in this journey where I've started a new series where we are covering paper 2 commerce and we have already started unit 3 business economics, right? So I've already made a video on this. In today's class, I will be extending of what I have taught already, right? So business economics basically has been firstly, in the last class, I have discussed what is business economics. Like this is a branch of economics, as we know. So we have talked about economics, basics ones, the principles, right? And the video I ended with talking about was monetary policy, right? So in the video, I talked about monetary policy as well. So economics principle, monetary policy, and what are the tools used in monetary policy? Very important and crucial topic, right? So these are like our keynote things when the first video which we have discussed, जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? तो अगर हम बात करें अभी आज की क्लास में हम क्या बात करेंगे, विल टॉक अबाउट प्राइसिंग डिसीजंस. ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाता है इस यूनिट का, जो काफी लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं. व्हाट दे यूजुअली डू इज दे इग्नोर दिस पार्ट. व्हाई? बिकॉज दे थिंक कि इकोनॉमिक्स से ही ज्यादा आएगा एंड दे थिंक दैट प्राइसिंग डिसीजन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट एंड दैट्स वेयर दे आर रॉन्ग. प्राइसिंग डिसीजन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड हाउ इट इज को रिलेटेड. It is correlated because, as you know, pricing decision depends upon market, right? Depends upon market, in which market you are operating. If you are a monopolist, if you are in monopolistic market, if you are in oligopoly market, if you are in perfect competition, the pricing decision differs, right? And there are theories of pricing decisions, how you have like the types of pricing decision. So all of those have to be discussed in today's class, right? So types of pricing decision, everything. So this video will be talking entirely about pricing decision part, okay? And the one more important thing is product life cycle, right? So that is an important thing as well. So we'll be discussing in depth what are the main things, pricing decisions, what are the types and the objectives and everything, right? So you can expect question on them. और आते भी हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते हैं, काफी क्वेश्चन आते हैं उसमें से भी. सो आपको सब प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना है. ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं करूंगा तो नहीं आएगा नहीं, ऐसा नहीं है. देयर आर चांसेस दैट यू विल सी दीज क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन एज वेल, राइट? द टाइप्स, द इम्पोर्टेंस, and I have told you already that you won't be getting straightforward question. You will be getting you know basically आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे बस बात लिखी हुई है. लेट सपोज अबाउट कि कॉस्ट प्राइसिंग में क्या क्या आता है. सो यू हैव टू नो कि उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है. ऐसे नहीं कि पूरा रट्टा माने कॉस्ट प्राइसिंग होता क्या है, ये क्या है. दे नो दैट यू नो व्हाट इज कॉस्ट प्राइसिंग, ठीक है? उसमें क्या क्या मेथड इंक्लूड होते हैं. सो दे आर मल्टीपल ऑप्शंस, तो वहां पे दे वांट टू टेस्ट यू आउट. सो दैट्स द रीजन, ओके? अब स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग डिसीजन से. जैसे मैंने बोला, आज की वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट प्राइसिंग डिसीजंस ओनली, राइट? तो प्राइसिंग डिसीजंस में क्या है वो बात करते हैं. जस्ट अ सेकंड, राइट? प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज किसके लिए यूज होती है? देखो, एक फर्म को सिलेक्ट करना चाहिए कि वो कितने ही अपने गुड्स या सर्विसेज के लिए प्राइस को चार्ज करेगी. प्राइस क्या? मॉनेटरी एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ गुड, ठीक है? इसको बोलते हैं मॉनेटरी एक्सचेंज, मॉनेटरी एक्सचेंज वैल्यू, एज वी ऑल नो, ठीक है? कुछ मॉनेटरी एक्सचेंज होता है किसी वैल्यू का, उसको हम बोलते हैं प्राइसिंग. एंड प्राइसिंग डिसीजंस क्यों इंपॉर्टेंट बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं. अब क्या है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है चेंज करती है प्राइस ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट विलिंगनेस टू पे, ओके? If you are operating in tier 1 cities, you will be charging accordingly because we think that in tier 1 people are usually more spending, okay? फिर अगर हम वही बात करें कि वहीं पे अगर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज होंगी तो वहां पे स्पेंडिंग पावर थोड़ी कम होगी कंपैरिजन टू टीयर 1, ओके? कंपटीशन पे भी मैटर करता है, मार्केट कंडीशन एंड अदर फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं प्राइसिंग की बिजनेस को. अब प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एक फॉर्म जो है यूनिवर्सल नहीं है कि आपको एक जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी दैट हैज टू बी फॉलोड थ्रू आउट, नहीं. हर एक फॉर्म की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफर करती है, डिफरेंट होती है, ठीक है? अब प्रोसेस ऑफ प्राइसिंग मेथड कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टार्ट होती है विद द गोल्स. जो भी गोल्स है उनसे स्टार्ट होती है.
द गोल दैट द फर्म एस्पायर्स टू अचीव, जो गोल जो फर्म एस्पायर करती है, मतलब उनके कुछ गोल्स होते हैं. लेट सपोज इनिशियल डेज में क्या गोल होते हैं एक फर्म के, फर्म जस्ट वांट टू ऑपरेट, ठीक है, पहले अपने कॉस्ट को कवर अप करना चाहिए, सिंपल है. जस्ट वांट टू ऑपरेट, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या है कि फर्म का प्रायर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जितनी उनकी कॉस्ट है, जितनी भी उनकी फिक्स कॉस्ट है वो कवर होनी चाहिए. वेरिएबल कॉस्ट अगर कवर हो रही दैट इज वेरी गुड, ठीक है. इनिशियल डेज में यू हैव टू मेक श्योर दैट योर प्राइसिंग इज इन दैट मच कि आप बहुत ज़्यादा हाईली प्राइस चार्ज कर रहे हो प्रोडक्ट, आप सोच रहे हो कि मैं एंट्री करते ही प्रॉफिट बना लूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है. तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है. इसीलिए आपको इनिशियली आपको अपने गोल सेट करने, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ ये हर जो मैंने बता दिया दैट इज ट्रू फॉर एवरीवन, नहीं, गोल्स डिफर करते हैं फर्म टू फर्म, और आपको अपने प्राइसिंग भी वैसी एस्पायर करनी पड़ेगी जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ, ठीक है. अगला क्या स्टेप है, इज टू डू मार्केट रिसर्च एंड फाइंड आउट द प्राइसिंग लेवल ऑफ द राइवल. सी कॉम्पिटिटर्स आर देयर, ठीक है. लेट सपोज इफ यू आर ऑपरेटिंग इन एन अनकॉम्पिटिटिव फील्ड, वो तो अलग ही चीज़ है, बट हम कहाँ पे, जहाँ पे हम बात करते हैं कॉम्पिटिटर्स आर ऑलमोस्ट और ऑलवेज देयर, ठीक है. अब कॉम्पिटिटर्स जब वो होते हैं ना, सो देयर आर लाइक वन वन एडवांटेज जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉम्पिटिटर्स का क्या है, यू नो द टारगेट, कि इन्होंने क्या प्राइस सेट कर रखा है. सही, तो आपके पास एक टारगेट प्राइस है कि व्हाट द प्राइसिंग दैट दे आर चार्जिंग, कि प्राइस लेवल क्या है. सो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि जनरली मार्केट में इफ दैट कॉम्पिटिटर हैज बीन सर्वाइविंग फॉर लॉन्ग, हाउ मच आर पीपल रेडी और विलिंग टू पे फॉर योर लाइक दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है. तो वो थोड़ा दिमाग में आइडिया बन जाता है. सो कॉम्पिटिटर प्राइस इज अ वेरी बेसिक टूल to get you started, right? The next step is to do market research and find out the pricing level of the rivals. After doing the market research, firm should express with target consumer. हमने आपने पढ़ा होगा प्रोसेस सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग करके एक कॉन्सेप्ट होता है वेयर यू आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट यू आर टारगेटिंग विद योर प्रोडक्ट, ठीक है. आपको अपनी ऑडियंस ढूंढनी जरूरी है. सी अगर आपको अपनी ऑडियंस नहीं पता है, यू विल बी कंफ्यूज्ड. आप हर के लिए प्रोडक्ट बना रहे होगे और अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा होगा जितना वो बिक सकता है, राइट. सो यू हैव टू फिगर आउट कि मेरी ऑडियंस क्या है जिसके लिए मुझे टारगेट करना है. इफ यू आर कमिंग अप विद cheap products, so you should be targeting those audience which have lower consumer income, ठीक है. बिकॉज आप सस्ते प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हो, यू वोंट बी एबल टू fetch orders from हाई पेयर कस्टमर्स, बिकॉज उनको आपकी उस प्रोडक्ट की वर्थ नहीं लगी, राइट. सो आपको अपने आप से सेगमेंट करना है ऑडियंस को, उनको टारगेट करना है, उनको पोजिशन करना है. दे शुड गेट डिटेल अबाउट देयर व्यूज एंड परसेप्शन ऑफ द ब्रांड प्रोडक्ट, ठीक है. अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना. सी एज यू नो व्हाट यू थिंक ऑफ ए प्रोडक्ट, व्हेन यू कम आउट विद अ प्रोडक्ट यू थिंक दैट your product is the best thing in the market, but for a reality check you have to know that whether your product is really that good or not. So what you can do is get the research done, get to know whether others are liking your product or not. So basically आपको details, views और perception चाहिए of the brand product. उसी के बाद you will get to know the reality check, ठीक है. तो ये हमारा प्राइसिंग डिसीजन का बेसिक जो प्राइसिंग मेथड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है उसके बारे में बात करी. ओके, अब बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास का, दैट इज टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. एज आई सेड, टाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल. आफ्टर फाइंडिंग आउट द नीड ऑफ क्लाइंट, द फर्म ट्राइज टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द क्लाइंट, ठीक है. इट ट्राइज टू प्रोवाइड देम विद गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट चीप प्राइसेस. सी प्राइस, एज इंडिया इज अ वेरी प्राइस सेंट्रिक मार्केट, वी ऑल नो. तो इंडिया में प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, राइट. अब देर आर कंट्रीज वेयर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी विल वर्क और नॉट वर्क, राइट, बिकॉज नॉट एवरी वन इज स्केप्टिकल अबाउट द प्राइसिंग, ठीक है. हर किसी को प्राइस का नहीं है इतना, इट्स नॉट अ मेजर ब्रेक और मेक डील फॉर एवरी वन, राइट, ग्लोबली इफ आई टॉक, राइट. बट इंडिया में, बिकॉज एज यू नो द मेजोरिटी ऑफ पीपल हैव नॉट मच ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, सो उनके लिए प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट करती है, मैटर करती है, ठीक है. अब पहले हम बात करते हैं प्राइस स्कीमिंग की, ठीक है. इसमें क्या होता है, स्ट्रैटेजी में कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे रखती है इनिशियल डेज से. देन द कंपनी सबसीक्वेंट लोअर द प्रोडक्ट प्राइसेस. द कंपनी लोअर द प्राइसेस व्हेन अदर राइवल एंटर द मार्केट.
This pricing strategy is used when the product is of high quality, it has a brand image and raise client loyalty. So प्राइस स्किमिंग का क्या बात है, मतलब कि स्किम, आपको पता है स्किम मिल्क आता है जब हम बात करते हैं। अगर स्किमिंग का एग्जांपल भी मैं आगे बता देता हूँ प्राइस स्किमिंग को याद करने के लिए ना, इसको अब हम बात करते हैं दूध के ऊपर जो मलाई बन जाती है। व्हेन यू बॉयल मिल्क तो आपको एक ऊपर मलाई बन जाती है। सी दैट इज बेसिकली द टॉप टीयर जो दूध के ऊपर आता है। तो प्राइस स्किमिंग से ना आप ये याद रखना, ये मलाई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टॉप टीयर लोगों की। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टॉप टीयर लोगों की। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मिडिल क्लास और द लोअर मिडिल क्लास और यू नो द पुअर पीपल, राइट। तो हम वहाँ बात नहीं कर रहे लो फ्रॉम पीपल फ्रॉम लोअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप टीयर पीपल है। सी अब क्या है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट हाई प्राइस पे चार्ज करते हो, तो इसका मैं एग्जांपल बता देता हूँ। एप्पल प्रोडक्ट्स, एज यू नो, सो इनिशियली एप्पल प्रोडक्ट्स को अगर आपने देखा होगा लॉन्च प्राइस पे, जब लॉन्च होते हैं इन एन ईयर, दे आर चार्ज एट अ हायर प्राइस। वाई? बिकॉज दे नो दैट पीपल आर रेडी to pay the premium for their products, right? So as you know, because India or it wherever you go, you get to know that Apple products are priced heavily, ठीक है, सस्ते नहीं मिलते, heavily मिलते हैं, and they try to churn out more and more। सी होता क्या है, जब भी ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, बीट एप्पल और द टॉप टीयर ब्रांड लाइक टेस्ला, सो वेन एवर दे आर कमिंग आउट विद इनोवेटिव प्रोडक्ट, सो उनकी कॉस्ट लगती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, R&D बोलते हैं इसको, ठीक है। सो R&D कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, एंड उस R&D कॉस्ट को कवर करने के लिए व्हाट दे डू इज बेसिकली price their products at a higher price. So what they are expecting कि initial days में majority of their users, as they are loyal, they will buy their products। as you know, हर साल Apple का एक product जब launch होता है, you will find a queue, people are waiting for one or two days to get the product on the first day। तो उनकी सेल्स बढ़ती जा रही है, सेल्स बढ़ती जा रही है, एंड एप्पल का टोटल वैल्यूएशन एज ऑफ नाउ इज $3 ट्रिलियन। सो काफ़ी एक्सपेंसिव है, $3 ट्रिलियन काफ़ी ज़्यादा इनकी वैल्यूएशन भी है इन कंपनी की, राइट। सो बेसिकली आई एम सेइंग कि इन कंपनीज का मेजोरिटी ऑफ मनी इज डेडिकेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D डिपार्टमेंट। सो व्हाट दे डू इज दैट दे नो द कि इनकी ना लॉयल्टी बहुत ज़्यादा, एप्पल फैंस आर देयर, एप्पल दे हैव देयर ओन इको सिस्टम वेयर you use MacBook, where you use AirPods, where you use Apple Watch। So एक पूरा इकोसिस्टम बना रखा है which connects very well, and उसकी वजह से they know that once people will buy their product, they won't get out of this ecosystem majority of time। I'm not saying 100%, right? So top tier की बात है, यहाँ पे आप initially price set high करते हो, and as you know, whenever a newer model comes, the older model gets cheaper। आपने देखा है इंडिया में देर इज सेल आती है, बिग बिलियन डे सेल, एंड उस टाइम आईफोन के प्राइसेस काफ़ी गिर जाते हैं। दिवाली सेल, बहुत सारी न्यू ईयर सेल, तो वहाँ पे वो प्राइसेस गिरते हैं इसलिए बिकॉज अब उन्होंने नए प्रोडक्ट्स बेच लिए एट अ हायर प्राइस। कभी भी आपको ना नए फ़ोन पे ऑफ नहीं दिखेगा, कार्ड डिस्काउंट एंड दोज थिंग आई एम नॉट काउंटिंग बिकॉज दैट दे हैव पार्टनर्ड विद दैट बैंक, वो नहीं कह रहा। बट आपको कभी भी नए फोन्स पे डिस्काउंट नहीं मिलता है बिकॉज दे वॉन्ट टू चार्ज देयर प्रोडक्ट एट अ प्रीमियम प्राइस। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो उसको सस्ता कर देंगे, बिकॉज नाउ दे वॉन्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल टू अडॉप्ट देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्राइस स्कीमिंग, टॉप टीयर मलाई याद रख लेना, टॉप टीयर बोलते हैं इसको। फिर अब उसके बाद हम बात करते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग की, ठीक है। हमने बात करी प्राइस स्कीमिंग, उसके बाद पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ये क्या है, इसका एग्जांपल से पहले मैं बता देता हूँ। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का बेस्ट एग्जांपल इज जियो, राइट। अब हुआ क्या, आज यू नो 2016 टेलीकॉम मार्केट में देयर वर प्लेयर्स लाइक वोडाफोन। ओके, मैं इसको थोड़ा और बेटर एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। सो हम बात कर रहे हैं किसकी, एक सेकेंड, हम बात कर रहे हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ठीक है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, जियो 2016 तक, as you know, there were few players in telecom market, bigger ones were Airtel, Vodafone and Idea। Vodafone and Idea were distinct entities, बाद में joint merger हुआ है।
एयरसेल भी था, डोकोमो भी था. But what happened when Jio came? Jio came with a strategy of offering data and voice call for free. For free. For free basically. You just have to get the SIM, and for a while, like I'll say for few months or probably an year, ये जो ऑफर था वो चल रहा था, राइट. इससे क्या होता है, जो भी बाकी प्लेयर्स के कंज्यूमर से, बीट एयरटेल, बीट वोडाफोन, बीट आइडिया, बीट एयरसेल, वो वहां से हटके जियो के पास जाने लगे. और यू कैन यूजुअली हैव टू सिम्स, तो वो देखना चाहते थे कि जियो कैसा है, राइट. तो ये क्या होता है, एक तरीका होता है जिसमें आप अट्रैक्ट करते हो बायर्स को ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट. दिस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एम्स टू कीप द प्राइसेस ऑफ गुड्स लो व्हेन द प्रोडक्ट is in its initial stage. Setting the price of goods and services at a lower level help to attract customer. अब इससे हुआ क्या कि मेजॉरिटी जो एयरटेल, वोडाफोन एंड आइडिया, दे स्टार्टेड ट्राइंग जियो. और दीज ब्रांड्स आर देयर इन मार्केट फॉर अ वाइल. ऐसा नहीं है कि एयरटेल वाज लाइक केम एन ईयर बिफोर, वोडाफोन केम 2 years बिफोर. नहीं, ये बहुत सालों से थे. जियो एकदम से आया विद इट्स स्ट्रैटेजी, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट. नाउ मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स स्टार्टेड शिफ्टिंग टू जियो. ठीक है. As we all know that later on Jio also introduce some plans because no one can operate for free. As अब इसमें होता क्या है, देखो सबसे पहली बात की पेनिट्रेशन प्राइसिंग कैन नॉट बी डन बाय अ फर्म जिनके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं. सी, इफ यू वांट टू ओपन अ टेलीकॉम कंपनी, यू विल फेल मिजरेबली. ठीक है, आपके पास उतने पैसे नहीं है. ठीक है, जियो जैसी कंपनी, गिवन इट्स बैक्ड बाय अम्बानी, दे हैड द मनी, राइट. दे कैन सफर ह्यूज लॉसेस ओनली बिकॉज दे सॉ पोटेंशियल इन दिस. उन्होंने पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज करी. नॉट एनी वन कैन यूज दिस स्ट्रैटेजी. ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है, राइट. अब इससे क्या होता है, कॉम्पिटिटर्स हैव लाइक ऑल्सो दे हैव टू basically push their prices down, because as we know Airtel, Vodafone and Idea were charging 1 GB for a month 200 rupees probably or more, right. तो वो सब जियो की वजह से उन्हें भी अपने प्लान सस्ते करने पड़े. एंड नाउ एज ऑफ नाउ ऑल ऑफ देम आर गिविंग probably सेम और मोर प्लान्स फॉर द सेम प्राइस. ठीक है, तो वो अब इक्वल ही हो गया. whosoever is providing better service, better connectivity is getting the customers. ठीक है, तो इसको पेनिट्रेशन प्राइसिंग बोलते हैं, राइट. दोनों एग्जांपल समझ लिए. एप्पल फॉर प्राइस के में पेनिट्रेशन प्राइसिंग खेल है हमारा जियो. अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की. हम बात करते हैं प्रीमियम प्राइसिंग. हेयर द कंपनीज जो होती है, कंपनीज ये क्या करती है, प्राइस जो है इतना सेट कर देती है जिस हायर, किससे, अपने राइवल से, कॉम्पिटिटर से ज्यादा सेट करना है प्राइस. इससे क्या होगा, अट्रैक्ट करना है उन क्लाइंट्स को जो ज्यादा पे करने के लिए रेडी है. Here clients pay higher prices for better quality and goods and services. See, as you know, हम जब भी प्रीमियम प्राइसिंग की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट फैशन ब्रांड्स, फैशन ब्रांड्स, राइट. तो मैं इसमें हमेशा फैशन ब्रांड्स का एग्जांपल देता हूँ फॉर प्रीमियम प्राइसिंग. ठीक है, प्रीमियम प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ. सी, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ Zara. ओके, Zara, LV, Gucci. So what they do basically, they're like kind of providing similar quality as to their peers. Similar quality होती है. But वहीं हम बात करें Louis Vuitton, Gucci. So in their defense, they're providing more or less the same thing, but because they know that their brand has a better reputation in market, they will charge higher premium. ठीक है, तो लुई विटोन के कपड़े आपको एक्सपेंसिव मिलेंगे, राइट. एंड people who are actually buying Louis Vuitton, Gucci products, they think because these products are priced at such a premium, they will help them differentiate. See, if a person is wearing a Louis Vuitton clothes or a Gucci cloth, uh, a first message to the receiver end will get that the guy is spending so much, or he has
दैट मच पेइंग कैपेसिटी, राइट, बेसिकली से। तो वो एक कम्युनिकेशन हो पा जाता है, वो फैशन ब्रांड्स की वजह से होता है। तो प्रीमियम प्राइसिंग ये होता भी इन्हीं की वजह से, बिकॉज द क्लाइंट्स आर रेडी टू पे हायर प्राइसेस। अगर ये ज़ारा, लुई विटॉन, गुची जो ब्रांड्स है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते इफ एंड ओनली इफ द पीपल वर नॉट रेडी टू पे हायर प्राइसेस फॉर सच प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब आई डू अंडरस्टैंड दैट दे आर प्रोवाइडिंग अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बट इतनी भी कोई बहुत बेटर क्वालिटी नहीं होगी आफ्टर ऑल, राइट। सो इनके लिए अनलेस एंड अनटिल पीपल आर रेडी टू पे बिकॉज दे वांट टू बी डिफरेंशिएटेड इन मार्केट, तब तक ही इनकी मार्केट है। एल्स व्हेन पीपल रियलाइज दैट यू डोंट हैव टू कैरी अ ब्रांड, then their market will start falling. So this is what premium pricing is. Okay, एग्जाम्पल के साथ मैं बता रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। नाउ बात करते हैं इकोनॉमिक प्राइसिंग पे। अब क्या होता है इकोनॉमिक प्राइसिंग का, कि आप सस्ती प्राइस रखो गुड्स की और लो प्रोडक्शन कॉस्ट हो, ठीक है। अब इसका भी एग्जाम्पल से समझाते हो इकोनॉमिक प्राइसिंग। एज यू नो चाइनीज फोन्स है हमारे, कंपनीज जैसे रेडमी, Xiaomi, Realme. So what are these? Basically well priced phones, economic price phones, right? I know there are Samsung products as well, but what these Chinese company used to offer for the price, no one used to offer, right? तो कोई भी जो भी इनकी ऑफरिंग होती थी for the price that they are offering, no one used to come close, right? So basically economical pricing. अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टूडेज टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर कोविड पीरियड। तब दे यूज टू गेट द बजट फोन्स आते थे। अब ये बजट फोन ये कैसे अचीव कर पाते थे? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की वजह से। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हाउ? जब ये मास प्रोडक्शन करते हैं, व्हेन दे डू मास प्रोडक्शन, उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो रेडमी, Xiaomi, रियलमी है, ये लोग अपनी यूनिट कॉस्ट को सस्ती कर लेते हैं, ठीक है। यूनिट कॉस्ट इनकी सस्ती हो जाती है, लेट सपोज 10,000, ठीक है। अब ये वॉल्यूम इनके पास बहुत ज़्यादा होता है, वॉल्यूम इनके पास ज़्यादा होता है, दे आर लाइक सेलिंग 10 मिलियन यूनिट समटाइम्स, ठीक है। इतना आपको कभी आईफोन में नहीं दिखेगा, बिकॉज आईफोन में इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कभी नहीं आ पाएगा, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एट दैट स्केल, बट दीज गाइज आर, बिकॉज दे नोज कि जब हम ज़्यादा बनाएंगे तो कॉस्ट सस्ती पड़ेगी, और उसकी वजह से हम ज़्यादा बेच के एट अ चीपर प्राइस ज़्यादा लोगों को एक्सेस कर पाएंगे। सी, एज ए सेड, इंडिया इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट। जब इंडिया जैसी प्राइस सेंसिटिव मार्केट में अगर आपको अटेंशन कैप्चर करनी है तो आप क्या करोगे? सस्ते प्रोडक्ट्स लेके आओगे। तो Xiaomi, Redmi, Realme, दे केम इनटू इंडियन मार्केट, इंडियन मोबाइल मार्केट, एंड दे केम विद इन अफोर्डेबल फोन्स लेके आए, एंड बेटर ऑफरिंग फ्रॉम इंडियन काउंटर पार्ट्स लाइक लावा, राइट, माइक्रोमैक्स, इनसे बेटर फोन्स लेके आए। उसकी वजह से क्या हुआ? मेजोरिटी ऑफ पीपल लाइक स्टार्टेड बाइंग फ्रॉम दीज ब्रांड्स, एंड आज भी है वो लॉयल्टी, ठीक है। अब ये ब्रांड्स कैसे अचीव कर पा रहे थे? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे और ज़्यादा बेच रहे थे, तो उनको महंगा नहीं पड़ रहा था, सस्ता पड़ता था, ठीक है। अब बात करते हैं बंडल प्राइसिंग की। नेक्स्ट जो प्राइसिंग है, फर्म क्या करती है? कंबाइन करती है ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू बंडल। द फर्म देन सेल इट एट अ सिंगल प्राइस। The total price of the goods is lower than the separate product sold individually. बंडल प्राइसिंग हमने बहुत बार देखी है। अब मैं इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत प्रीमियम एग्जांपल है बट काफ़ी यूज होता है। आप किसी और के भी एग्जांपल्स यूज कर सकते हो, बहुत एग्जांपल है बंडल प्राइस। सी, एग्जांपल इसका मैं बताता हूँ आपको, सैमसंग। कभी भी जब भी सैमसंग के प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, लॉन्च से लेके थ्रू आउट द ईयर, इफ यू आर बाइंग देयर फ्लैगशिप फोन्स, लेट्स सपोज एस सीरीज, जी सीरीज, बेसिकली फोल्ड सीरीज, तो अगर ये लेट सपोज फोल्ड सीरीज का एग्जांपल है, तो अगर मैं आप 1 लाख रुपए का फोन ले रहे हो, आप 10,000 और स्पेंड करो, आपको इनकी वॉच मिल जाएगी, वॉट एवर वॉच, इनके बर्ड्स मिल जाएंगे, राइट, विद इन दिस 10,000 रुपीज। बट अगर आप इंडिविजुअली लेने जाओगे तो आपको 20,000 वॉच पे देने पड़ेंगे, बर्ड्स पे 15,000 देने पड़ेंगे। तो आपको ये ऑफर दे रहे बंडल प्राइसिंग, कि आप 10,000 और स्पेंड करो, आप वॉच और बर्ड्स ले लो। सो ये बंडल प्राइसिंग होता है, फॉर्म जो है कंबाइन कर देती है ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू अ बंडल, और उसको एट अ सिंगल प्राइस बेचती है, ठीक है।
ये मैंने थोड़ा प्रीमियम एग्जाम्पल भेज दिया। अगर मैं आपको बता दूं फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी ऐसे बंडल प्राइसिंग मिलता है कि आप लेट सपोज आप ले रहे हो सनस्क्रीन एंड देयर इज सम विटामिन सी क्रीम और सीरम, कुछ भी विटामिन सी सीरम। अगर आप ये दोनों लोगे, बंडल लोगे, तो आपको ये पड़ेगा 400 का बंडल। ओके, बट अगर आप इंडिविजुअली लोगे तो ये पड़ेगा 250 एंड दिस विल बी ऑल्सो लाइक 230 समथिंग, 480 का टोटल होगा, बट बंडल विल बी फॉर 400 रुपीज। नाउ होता क्या है बंडल प्राइसिंग से, वाई इट इज कि हमें तो सस्ता पड़ रहा है। सी, ब्रांड को, they know that sunscreen is in demand, but vitamin C serum is not in demand, right? So what they do is basically they want to sell this one out as well, because costing तो और सस्ती होगी definitely. In 400 also they are making profit, ऐसी कोई बात नहीं. So what will they do is basically bundle this with a famous product so that people also buy these product and उनका ये सेल आउट होना शुरू हो जाए, ठीक है, एक डिमांड क्रिएट हो जाए। लेट सपोज अगर आपको विटामिन सी सीरम पसंद आ जाता है, आपकी सनस्क्रीन अभी भी बची है, तो यू विल ऑर्डर विटामिन सी सीरम इंडिविजुअली एज वेल। सो दिस इज व्हाट बंडल प्राइसिंग, दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड बंडल प्राइसिंग, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की। जस्ट अ सेकंड, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की बात करें, हियर द कंपनी सेट द प्राइस ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट परसीव्ड वैल्यू। इसका एग्जाम्पल भी फिर से हमारा आईफोन ही है, एग्जाम्पल एप्पल आईफोन। सी, इफ आई गो बैक इन टाइम, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, आईफोन 7 एंड 7 प्लस एक मॉडल आया था, राइट। सो द मैक्स प्राइस फॉर 7 प्लस वॉज ₹60,000 when it was launched. I'm not talking about discount price at all. So 60,000 इसका मैक्स प्राइस था, right? And then they launched many series. Now 15 series is in basically in demand, or is launched recently. Now as you know, there are four models for 15, 15, 15 plus, 15 pro and 15 pro max, ठीक है। So from what I know, the max price for 15 pro max goes up to 2 lakh rupees INR, right? So that's the max price of max storage. I'm not talking about the starting price here. Let's suppose, the difference from I think Apple iPhone 7 and to the 15 series is probably 6 years, 6 or 5 years. Even if we account inflation, I don't think so it anyhow crosses 1 lakh rupees. Anyhow, कभी भी वो 1 लाख रुपए तक कुछ क्रॉस नहीं करता। The costing also does not cross 1 lakh rupees anyhow, ठीक है। Now if you are just selling the 15 Pro Max for rupees 2 lakh, they know that people are ready to pay the value that they are providing. The customer are ready to pay 2 lakh rupees. Now another thing that I want to add, that this 15 Pro Max is rupees 2 lakh. Okay, I have seen people buying this 2 lakh rupees phone, 2 lakh rupees phone for 20,000 or 30,000 extra. How and why? Because as you know, initially the demand is higher, right? The demand is higher and the supply is short initially, right? So because the demand is high, people are black marketing it. Okay, so black marketing की वजह से क्या हुआ, जो 2 लाख रुपए का फोन है, लोग उसके लिए 2,20,000 2,30,000 देने के लिए भी रेडी है। This is the reality I'm talking about, right? If you haven't encountered any situation, you have to be more aware about the market. ये reality है। तो लोग 20-30,000 एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी है। वाई? बिकॉज देर इज परसीव्ड वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट। अगर नहीं होती तो कोई 2 लाख रुपए भी नहीं दे रहा होता, राइट। दैट इज हाउ दे आर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, ठीक है, कि उन्हें पता है लोग दे आर रेडी टू पे। मे बी बिकॉज इफ let's suppose Apple find the data that majority of people are buying at a higher cost, then maybe then in future they will decide to price it at 2 lakh 30 or 2 lakh 40,000, right? So there is a possibility. That's how they will set their new target price. Okay, अब डायनेमिक प्राइसिंग की बात करते हैं। डायनेमिक प्राइसिंग क्या है? यहाँ पे जो प्राइस ऑफ गुड्स है ये सेट होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट मार्केटिंग डिमांड, ठीक है। क्लाइंट चेंजिंग परसेप्शन एंड बिहेवियर ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रेट।
डायनेमिक प्राइसिंग का सिंपल से एग्जांपल बता दो आपको। एयर टिकट फेयर्स हमारे जो होते हैं डायनेमिक प्राइस में होते हैं, ठीक है। अगर आप पहले बुक कराते हो यू विल गेट इट फॉर चीपर, एंड जितना आप क्लोजर जाते हो फॉर दैट पर्टिकुलर डेट, तब आपको एक्सपेंसिव या हायर चार्जेस पे करने पड़ते हैं फॉर द सेम टिकट, ठीक है। सो डायनेमिक प्राइसिंग क्या है? प्रॉब्ली दे आर ऑफरिंग, लाइक दे आर ऑफरिंग यू द सेम सर्विसेज, एवरीथिंग द सेम, द फ्लाइट विल टेक ऑफ फ्रॉम दैट पॉइंट एंड विल लैंड टू अ पॉइंट, just because you are booking that ticket or that seat later on, you have to pay more. If you did book that thing in advance तो आपको सस्ता पड़ता। तो ये डायनेमिक प्राइसिंग है, ठीक है। अब सब्जी का होता है, एज यू नो, इन सब्जी मंडी इफ यू गेट लाइक इफ यू गेट ऑन अर्ली तो आपको थोड़े ठीक प्राइस मिलेंगे। अगर आप बिल्कुल एंड में जाते हो, जब उन्हें पता है दैट सब्जी, बिकॉज वेजिटेबल इज अ पेरिशेबल प्रोडक्ट, वो पेरिश हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी, एंड दे हैड टू थ्रो इट आउट। जब वो सड़ने लगने लगे कि अभी सड़ ही जाएगी, सो बेटर टू सेल इट एट अ चीपर प्राइस। तो डायनेमिक प्राइसिंग का यूज होता है कि जब बिल्कुल ही उसका हालत खराब होने की स्टेज पे आ गया है तो बेटर सेल इट आउट। क्या फायदा है उसको रख के, ठीक है। सड़ाने से अच्छा है उसको किसी को तो बेच दो और कुछ पैसा रिकवर कर लो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डायनेमिक। तो नाउ एज वी हैव लाइक कवर्ड होल यूनिट 3, यहाँ पे अभी भी एक और वीडियो है वेयर आई विल कंटिन्यू ऑन यूनिट 3। सो एज यू नो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पेपर 2। पेपर 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है, वी ऑल नो अबाउट दैट। तो पेपर 1 की अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए एंड फुल प्रूफ करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम स्क्रैच, डाउनलोड द ई बुक्स, राइट। ई बुक्स को डाउनलोड करना आसान है, फ्री है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 9873907600, वहाँ पे हाई भेजना है और आपको जिस पर्टिकुलर यूनिट के लिए आपको नॉलेज बुक चाहिए, जैसे फॉर दिस इज फॉर यूनिट 10, यू कैन अवेल फॉर एनी अदर यूनिट, राइट। सो आप अवेल करो, असेंशियल्स को बाय करो। वाई? इट्स फॉर फ्री। यहाँ पे बाय करना बेसिकली यू हैव टू गेट इट। व्हाट्सएप करो, एसेंशियल्स को डाउनलोड करो एंड रीड इट ऑन योर ओन। पता तो लगे कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, एंड कोई यूनिट वीक है तो उसको इम्प्रूव करना काफ़ी ज़रूरी बन जाता है, ठीक है, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपने टैलेंट ब्लेजर ऐप अगर ऐप स्टोर से डाउनलोड नहीं करी है, सो डू डाउनलोड दैट फ्रॉम द प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। द लिंक फॉर द सेम विल बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, राइट। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो दैट आई हैव मेड, सो डू लीव अ लाइक, बट डू press on like button, subscribe to the channel so that you get notified whenever I come up with the next video on this unit, right? And share this video with your friends, बहुत important है, so that they can enhance in their preparation journey, right? So subscribe करना मत भूलना, and press the bell icon as well, because बेल आइकन दबाओगे तो डेफिनेटली यू विल गेट नोटिफाइड फॉर द सेम, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक करना, बिकॉज इफ दैट इज दैट इज द वे यू कन्वे अबाउट द वीडियोज क्वालिटी, ठीक है। कुछ और भी हो, इफ यू वांट टू आस्क अबाउट एनीथिंग यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। कुछ और एग्जांपल आपको अगर याद आए हो प्राइस स्कीमिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, प्रीमियम प्राइसिंग, बंडल प्राइसिंग के, तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बता सकते हो। एवरीथिंग इज ओपन, it's a discussion forum, basically you can comment it down, right? So thank you all for joining. I'll make sure if you do reply on the comment, I will try to reply you on all the comments of on for your doubts and queries, हर चीज़ के बारे में बता दूंगा। And make sure that you join me whenever I come up with the next video. Okay, so thank you all.